Hello students, welcome to our YouTube channel. So in our previous video we have discussed about the male gametophytes produced in a plant which is termed as pollen grains. So in our today's video we will discuss about the female gametophyte which is considered it as a ovule, है ना. सबको पता होगा कि ओव्यूल जो होता है वो प्लांट के केस में फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं. तो आज हम उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के रिगार्डिंग उसके जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करने जाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस. एज इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विच मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द pollen mother cell. The process is known as microsporogenesis. Here in this case the process of formation of female gametophyte, female we can say megaspore mother cell is termed as megasporogenesis. So here we can say that the process by which the female gametophyte or female mother cell, megaspore mother cell is formed, the process is termed as megasporogenesis. So coming toward the slide, first of all, as you can see, this is the female reproductive part in flower which is considered it as a pistil. Pistil contains stigma, style and ovary, as we have discussed in our earlier video also. Here you all know that what is the role of stigma. It performs a platform for the pollen grains, the style which leads to a germination of pollen tube, and here which is our ovary reproductive part where the formation of ovule takes place. When the formation of ovule takes place after maturation, this ovule leads to a formation of seed and this ovary leads to a formation of fruit. We will discuss in our further topic. So coming toward the next slide, female reproductive unit, as we all know that it is a pistil. Pistil is a female reproductive part of the flower. It may be mono or bi or tri polycarpellary. Here depends upon the carpus. Here what the depends upon this process, this carpal process, it can be of multiple types. It can be of bi, tri or polycarpellary. syncarpellary, apocarpellary. Bi, tri means या दो होंगे या तीन होंगे या तीन से ज़्यादा होंगे, तब हम उसको polycarpellary बोलेंगे. And we will consider it as a syncarpus when more than one pistil are fused together. Okay, जब एक से दो पिस्टल आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड रहते हैं इस कंडीशन में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे. एंड एपोकार्पस तब कंसिडर करेंगे उसको जब ये पिस्टल्स जो है वो आपस में फ्री कंडीशन में है. सपोज ये एक पिस्टल है, ये सेकंड पिस्टल है. ओके, दिस इज़ अ सेकंड पिस्टल, दिस इज़ अ थर्ड पिस्टल. जब ये आपस में फ्री कंडीशन में रहेंगे तब हम इसको एपोकार्पस बोलेंगे. एंड इन सिनकार्पस दीज ऑल आर जॉइंट together or fused together, then we will consider it as a syncarpus. Okay, and the bi, tri and poly means more than one, more than two and more than three, as the name suggests. Okay, so each pistil consists of ovary, style and stigma, as we can see here. Each one has, okay, the ovary has one or more cavities called locus. Okay, so these ovary has a locule part. Okay, here is a locule part where the formation of ovules or the ovule where persist. Placenta and locules bear ovules. These locules bear ovules. Okay, number of ovules may be one or more. Depends upon the as you can see in a citrus fruit it produces many ovules, and in mango it produces only a single ovule. So these are the types. So this is the structure of ovule. ओके, एक टिपिकल सीड में ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक टिपिकल प्लांट में तो वो कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है, एक अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो कि एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम है, ये अगर इस ओव्यूल की बात करें तो ये एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल होता है. एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, ये एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है. सो और भी बहुत टाइप के ओव्यूल्स रहते हैं. एक वीडियो हम लोग बाद में प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अभी हम लोग सिर्फ ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर द ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो अभी आपका उल्टा है. अगर इस स्ट्रक्चर को हम उल्टा कर दें लाइक दिस सो इट विल बी अ actual structure, but to make you understand this diagram is placed like this in your NCERT book also. Okay, so here you can see there is a structure called hilum. These hilums, ये hilum क्या करते हैं, ये joining रहता है ना, ओवरी के प्लेसेंटा वाले रीजन में
ये जॉइन करके रखता है, जैसे कि ये ओवरी है जो कि फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा और इसके अंदर जो सीड रहेगा तो वो उसके मार्जिन से, उसके पेरीफेरी से उसको जॉइन करा के रखता है, जो कि हाइलम का रोल रहता है। ओके, जैसे कि ये कोई सीड फ्रूट है, एज यू कैन सी दिस इज़ अ फ्रूट। अब उस फ्रूट में बीज है ना, सीड है, तो वो सीड का जो हाइलम वाला पोर्शन रहता है वो ओवरी में फिटेड रहता है ताकि वो सीड जो है उसमें अटैच कंडीशन में रहे। तो ये रोल रहता है हाइलम का। हियर वी कैन सी अ फनिकल, दिस फनिकल प्रोवाइड अ जंक्शन ऑफ माइक्रोपाइलर रीजन, मीन्स व्हाट, ये ओपनिंग रहता है माइक्रोपाइलर रीजन का। ओके, अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा माइक्रोपाइल, तो ये माइक्रोपाइलर रीजन वो रीजन है जब एट अ टाइम ऑफ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो सपोज हियर यू कैन सी दिस इज़ अ माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। तो माइक्रोपाइल से ही जो पॉलन ट्यूब है वो एंट्री करेगा, ओके, पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा, एंड फ्रॉम हियर द फर्टिलाइजेशन, फर्दर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो माइक्रोपाइलर इज अ रीजन फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब एंटर्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट का मतलब है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। ये एम्ब्रियो सैक को इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट मीन्स सिंपली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक मेम्ब्रेन है ना, जो क्या कर रहा है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज न्यूसेलस। तो न्यूसेलस, जैसे कि हम मेल गैमेटोफाइट में हमने देखा था टैप्टम, वैसे ही यहाँ पे न्यूसेलस का रोल रहता है। न्यूसेलस हैज़ अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। ओके, you can see a chalazal pole. These chalazal poles also contain a numerous amount of nutritive tissues and nutritive cells. So okay, तो ये chalazal pole में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस स्टोर्ड कंडीशन में रहते हैं, जो क्या करता है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड एट अ टाइम टू टाइम करता रहता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है, पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन होना है वो माइक्रोपाइलर रीजन से होता है, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल से हो, माइक्रोपाइलर रीजन से हो, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं, पोरोगैमी। ओके, सिनगैमी का मीन्स होता है जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ओके, तो जब पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर रीजन से हो तब उसको पोरोगैमी बोला जाता है। कभी कभी किसी कंडीशंस में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो पॉलन ट्यूब का जो एंट्री होता है वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही होता है, जिसे हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं। बट इन सम केसेस, कभी कभी किसी किसी प्लांट्स में क्या होते हैं कि जो पॉलन ट्यूब है वो इंट्यूगमेंट से ही एंट्री कर जाता है। ओके, इंट्यूगमेंट से ही एंटर कर जाता है, और जब पॉलन ट्यूब की एंट्री इंट्यूगमेंट से होती है तब वैसे प्रोसेस को बोला जाता है मीजोगैमी, मीजोगैमी। ओके, देन इट इज़ कंसिडर्ड इट एज अ मीजोगैमी। और कभी कभी और रेयर केसेस में देखा जाता है कि कुछ पॉलन ट्यूब जो रहते हैं उसकी एंट्री चैलेजल पोल से भी हो जाती है, ठीक है। तो जब पॉलन ट्यूब की एंट्री चैलेजल पोल से होती है देन उसको बोला जाता है चैलेजोगैमी। तो ये तीन टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे, चैलेजोगैमी, पोरोगैमी एंड मिजोगैमी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ओके, माइक्रोपाइलर पोल, इंट्यूगमेंट, nucellus which provide nutritive substance to the embryo, developing embryo sac, and in this embryo sac there will be form a megaspore mother cell, and from this megaspore mother cell we will discuss on later कि क्या होता है, ठीक है। तो जब ये जो ओव्यूल है वो इमेच्योर रहता है तो ये न्यूसेलस एंड चैलेजल रीजन जो रहते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल। Coming toward the next slide, as you can see there is two types of ovules present here. You can see here that here the ovary walls is absent. Okay, ovary wall आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में, because जिम्नोस्पर्म consist of a naked seed. वो फ्रूट से कवर्ड या एंडोस्पर्म से कवर्ड नहीं रहता है, that's why it doesn't have a ovary wall. Okay, but here you can see there is a outer structure called ovary wall, and inside of this ovary wall there is a ovule present there. Okay, so this is the difference between angiosperm and gymnosperm slide. Coming toward the next slide, after the maturation of this ovule or embryo sac, there is a formation of megaspore mother cell which is termed as MMC, megaspore mother cell. Here in megaspore mother cell, as you can see,
you can see in this slide better. As you can see here, the megaspore mother cell has developed. Okay, from this megaspore mother cell, it leads to a division. First division takes place. Which kind of division? First meiotic division, because this is a cell. Okay, this is a cell, and here the first meiotic division takes place. When the first meiotic division takes place, it forms two cells, two megaspore cells, which is termed as dyad. Now in this dyad, the second division takes place, second meiotic division takes place, and leads to a formation of megaspore tetrad. As you can see here, the megaspore tetrad has been formed. Okay, after the formation of this megaspore tetrad, what will happen? Only a single megaspore out of this 4, only a single megaspore will remain, and the rest 3 would leads to a degeneration. Okay, the rest 3 would degenerate. यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 टेट्राड हमें फॉर्म हुआ है उसमें से सिर्फ एक ही क्या रहेगा, एक ही फंक्शनल रहेगा, और बाकी जो 4 रहेंगे वो क्या हो जाते हैं, एट अ टाइम डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो इतने केस में क्या हुआ था, मियोसिस का केस हुआ था, है ना, मियोसिस हुआ था. मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग वेल एंड गुड फैमिलियर होंगे. ओके, सो यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस 1, मियोसिस 2, एंड इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर टेट्राड, out of which only 1 is functional, and you can see here the out of 3 gets degenerate. Okay, so after the formation of this one functional megaspore, here now the mitotic division takes place. Mitotic divisions means the equational division, as you all know. So here 1 से 2 हुआ फर्स्ट डिवीजन में, फिर 2 से 4 हुआ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में, देन फिफ्थ डिवीजन में क्या हुआ, 4 से 8. जैसे ही यहाँ पे 8 फॉर्म होते हैं, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक मेगास्पोर था. ठीक है, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 बना मेगास्पोर डायड, एंड हियर मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म्स, और यहाँ पे बाकी 3 जो है डिजनरेट हो गए, ओनली 1 सिंगल फंक्शनल. अब यहाँ पे जो सिंगल बना है वो 1 से 2 हुआ, 2 से 4, एंड 4 से 8. 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए. नाउ द पोजिशन ऑफ दिस 8 सेल इज वेयर. ओके, सो यहाँ पे आपको पोजीशन देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसे हम इसमें देखेंगे. जो 8 सेल में से जो 3 सेल थे वो कहाँ चले जाते हैं, एंटीपोडल रीजन में. ओके, 3 कहाँ चले जाते हैं, एंटीपोडल रीजन में. बाकी 3 कहाँ जाते हैं, चैलेजल रीजन में. ओके, चैलेजल रीजन में, एंड द रेस्ट टू माइक्रोपाइलर रीजन में. दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन एंड दिस इज अ चैलेजल रीजन. ओके, this is the chalazial region. So in this structure you can see कि इस 8 में से जो 3 हैं, यहाँ पे जो 3 हैं वो कहाँ चले जाते हैं, chalazial region में, और बाकी जो 3 हैं वो कहाँ जाते हैं, micropylar region में. Here in chalazial region the 3 of these cells are surrounded by a separate wall. Okay, it is surrounded by a separate wall or separate chamber. Here also in a micropylar region, the 3 of them are surrounded in a separate region. As you can see, it forms a 2 synergid and 1 axil. Okay, and but the 2 which is left in a center part remain fused together. They form a fuse together. मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे दोनों आपस में फ्यूज कंडीशन में रहते हैं, सेपरेट नहीं रहते. इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि 3 जो थे वो ऊपर चले जाते हैं चैलेजल रीजन में, जहाँ पे वो एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये एंटीपोडल का रोल ये रहता है कि इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रहते हैं जो बाद में इस पोलर न्यूक्लियाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 सेल, ये रेड वाला 1, 2 एंड ये थर्ड वाला सेल आपस में फ्यूज कंडीशन में नहीं है, तीनों एक दूसरे से सेपरेट हैं. बट यहाँ पे जो 2 रेड सेल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड कंडीशन में है. ओके, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है. द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड. ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे 7 सेल हम कंसिडर कर सकते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, एंड कंपेयरिंग दिस 1 7 सेल्ड. 7 क्योंकि आपस में फ्यूज्ड कंडीशन में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 7 सेल्ड. तो 7 सेल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 सेल्ड है. बट हियर द न्यूक्लियस आर 8. हियर 1 न्यूक्लियस, 2 3 4 5
6, 7 and 8 because nucleus are not fused together right now. Okay, इसलिए न्यूक्लियस कितने हैं 8 हैं एंड सेल कितने हैं 7 सेल्ड. 7 सेल्ड या 7 वॉल्ड भी आप बोल सकते हो इसको. 7 वॉल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सेक का होता है. क्लियर, इजी. So this is the structure of mature embryo sac as you can see here. Now coming toward the ovule which you have studied right now. The short stalk which attach to the ovule which is called फनिकल. यहाँ पे आपको फनिकल दिख रहा होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि फनिकल्स क्या होते हैं. हाइलम से ओव्यूल से अटैच एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है. ओके, द प्राइमोडियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ द सेल फॉर्मिंग अ न्यू सेल्स. जो प्राइमोडियम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं जो कि उसका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है. यहाँ पे 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इंट्यूबमेंट, है ना. बट माइक्रोपाइलर रीजन में कोई भी इंट्यूबमेंट्स नहीं पाया जाता बिकॉज उस कंडीशन से पॉलन ट्यूब को एंट्री करना है. दैट्स वाई देयर इज अ लैकेज ऑफ माइक्रो इंट्यूबमेंट. ओके, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चेलेजल विच लाई इन द अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल. सेल ऑफ अ न्यूसेलस आर रिच इन अ reserve food material as I have told you earlier. The single embryo sac or female gametophyte located in the nucleus which is developed into a megaspore. अब यहाँ जो आपने देखा था स्ट्रक्चर हियर कि जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो सेल रहते हैं वो मेगास्पोर के तरह मेगास्पोर सेल्स में फॉर्म्ड होते हैं. क्लियर. यहाँ पे आपको एंटीपोडल्स दिख रहे होंगे, 3 एंटीपोडल्स एज यू कैन सी हियर. एंड हियर इज अ 2 synergid. What is the role of this synergid here? Let me tell you first. Here, as you can see the structure of a typical mature ovule, you can see a structure here is called a synergid. यहाँ पे जो 2 वॉल हैं वो आपको synergid की तरह दिख रहे हैं. ये synergid का रोल ये रहता है कि ये synergid एक apparatus का फॉर्मेशन करता है जिसे फिलीफॉर्म apparatus बोला जाता है. ये फिलीफॉर्म apparatus का रोल ये रहता है कि जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो यहीं से होती है. ओके, पॉलन ट्यूब की जब एंट्री होगी तो यहीं होगी, synergid वाले पोर्शन से मोस्ट प्रोबेबली होता है. तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि भैया आप यहीं से एंट्री ले लो, है ना, ये आपका रास्ता है, आप कहीं और रास्ते में ना चले जाओ, ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपका पाथ है. तो वो क्या करता है फिलीफॉर्म एपरेटस, उसको एंट्री प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो सिनर्जिड फॉर्म करता है फिलीफॉर्म एपरेटस को. मोस्ट प्रोबेबली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, जो कि क्या करता है पॉलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करता है. ओके, सो ये रोल रहता है इसका. So this is the basic structure of a typical megaspores you have seen, and the process of the formation of the here 7 celled and 8 nucleated structure. This process is only termed as a megasporogenesis, where the formation of a mature ovule takes place. This is considered as a megasporogenesis. So as you can see here, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना स्टार्ट किया, 2 मेल गैमेट रिलीज़ कर दिए. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये डबल फर्टिलाइजेशन का है, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो बी क्लियर अबाउट द टॉपिक एंड बी क्लियर अबाउट द मेल गैमेटोफाइट एंड द फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, regarding this chapter, or till which we have the video we have made, you can ask in a comment section and let me know your doubt. Okay, so this is all for today's video. Thank you so much, students.